So, ladies and gentlemen, in the last class, we talked about the protocols and the protocol made of the definitely of the algorithms, and algorithms are made up of these three communication rules. And every protocol perform one or more functions, and they are placed in a sequence order, which means you can't change the order. I gave you an example, if you remember in the last class, that for example, if you want to go abroad, you can't say that I will buy a ticket and then I will look at for the visa. No, you first have to get the visa, and for the visa, again, you need to have the passport, and for the passport, you need to have the NIC. So, which means these functions need to be in a certain order. Similarly, in the communication networks or communication systems, these protocols need to be placed in a specific order. Clear? And we have seen when we place just the protocol where this protocol is residing, that has been given a name layer. Layer और कोई physical item नहीं है. Physically, just layer is just a logical thinking that here a protocol, and after this there is another protocol, and after this there is another protocol. Like for example, you have to get a degree. So understandably, you have to go to the semester 1, then semester 2. But definitely there is no physical something which we said, oh, this is layer semester 1. But this is the time period during which you have to perform certain functions. And after this, you will say, oh, I passed layer 1. I passed the semester 1. So this semester 1, layer 1 is something which is a conceptual idea where you assume that you have accomplished these tasks. You have done these tasks. You have performed these tasks. And after this, some other tasks need to be done. And who will perform it? Not the first protocol. It will hand over to the next protocol. And there need to be an interface between these two protocols. We normally say there should be an interface between these two layers. That is very important, that these interfaces are very, very important. Kyun, Tariq? Why they are important? G. Amber, why these I introduced a new term which I probably haven't talked in the last class, that if this is layer 1, if this is layer 1, if this is layer 2, and I said that between these, is it visible? Okay, nice. So if they are visible, then तारिक हमें जवाब नहीं दे रहा कि जनाब मैंने कहा इनके दरमियान में एक इंटरफेस होना जरूरी है. लेकिन मेहरान कुछ बताएगा why I am very much curious about this arrow which means interface. Well defined interface. I will use the word well defined interface. Why? मेरी बात समझ आ गई? वाई का जवाब तो चले मैं दे दूंगा. ये बात क्लियर होगी कि जी वाई आई एम पुशिंग दिस वर्ड, वाई आई एम सेइंग दैट देयर इज एन इंटरफेस व्हिच शुड बी वेल डिफाइंड. मेरा आई एम कंफ्यूज. जी बिल्कुल ठीक, लेकिन एक मैंने कहा कि यहाँ पे जो लफ्ज मैं इस्तेमाल कर रहा हूं कि इनके दरमियान जो इंटरफेस अगर आपको तंग कर रही है, तो मैं वर्ड आसान कर देता हूं. रुखमा कहती है पाइप का वर्ड यूज कर लो कि देयर शुड बी अ पाइप बिटवीन द टू लेयर्स एंड दैट पाइप नीड टू बी वेल डिफाइंड. अब मैंने अपनी बात को थोड़ा सा इजी कर लिया. अब भी उमर को समझ नहीं आई तो और आगे जा सकता हूं. अहमद जी, तो इसका जवाब ये है क्योंकि वेल डिफाइंड इसलिए कि इस लेयर को मिसाल के तौर पे आई एम कॉलिंग इट लेयर 2, आई एम कॉलिंग इट लेयर 1. इसका मतलब ये अंबर के लेयर 2 जो है, इसको पहले से बड़ा क्लियरली पता है कि तुम्हें क्या चीज दी जाएगी और किस फॉर्मेट में दी जाएगी. इसी तरह लेयर 1 को पता है कि मुझे किस हालत में चीज को ट्रांसफॉर्म करना है, तो उसके बाद मुझे अगली लेयर के हवाले करना है. राम में मुझे उसको नहीं गिरा देना. इट इज वेल डिफाइंड. क्यों तारिक, अभी भी नहीं क्लियर?
अच्छा नहीं, अगर तारिक को क्लियर हो गया है तो अब तारिक बता दे व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस वेल डिफाइंड इंटरफेस। इसका मतलब है कि उसको पहले से पता है कि मुझे यहां तक किया हुआ, जैसे मिसाल के तौर पे पासपोर्ट ऑफिस को पहले से पता है कि नादरा का पासपोर्ट जो है, सॉरी एनआईसी, इस शेप की चीज है और इस पे ये चीजें लिखी हुई हैं मेरे लिए, तो वेल डिफाइंड है। अगर ये वेल डिफाइंड ना होता तो मेहरान एक और एनआईसी लेकर उनके पास चला जाता, जी दास हमा वाला दे, और तारे कहता दास हमा वाला दे। किसी के ऊपर उसका नाम लिखा होता तो वालिद नाम ना होता, किसी में वालिद का नाम होता तो डेट ऑफ बर्थ ना होती, किसी में डेट ऑफ बर्थ होती तो डिस्ट्रिक्ट का नाम ना होता, यानी वेल डिफाइंड नहीं है। तो इसलिए वो फिर उस आगे उनको प्रोसेस करने में डेफिनेटली मसला होता कि जी, वो भी आपसे पूछता जी ना सीख दो खुद खर आवड़ो, वो दे बंद उस्ताद वालिद साहब ने निश्ता अकबल वालिद नाम से वो आएगा ना। जो ही आप उसको कहते हैं जी ये मेरे वालिद साहब का नाम ये है, तो कहते हो आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा हो, वो तो बता दो ना। जो ही आप उसको डेट ऑफ बर्थ बताते तो कहता प्रोफेशन आपका इसमें नहीं लिखा हो, वो तो बता दो ना। तो इट इज नॉट वेल डिफाइंड मीन्स, तो इट हैज बीन वेल डिफाइंड दैट द एनआईसी विल हैव these features and after completing all these requirements then it will be given to the next layer। तो अब इसका इसका क्या फायदा हुआ? इसका फायदा हुआ कि लेयर्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो गई। अब पिछली लेयर को जाके पूछना नहीं पड़ता कि जी वालिद फादर नेम तो बता दो ना, और अगली लेयर को भी पता होता है कि मुझे ये सारी चीजें मिलेंगी एंड आई हैव टू डू दीज स्टेप्स। अब इसका फायदा फिर क्या हुआ? कंपनीज जो हैं उनको हर मिसाल के तौर पे अगर आप एक एनआईसी बना रही हैं, तो अगर मैं पूछूं अंबर से कि अगर आप कल किसी ऑर्गेनाइजेशन में या अपनी एक इंडस्ट्री खड़ी कर देती हैं और आप लेयर टू के का सॉरी आप बनाना चाहती हैं एनआईसी कार्ड, किस लेयर पे काम कर रही हो? किस लेयर पे काम कर रही हैं? आपकी दोस्त किस लेयर पे काम कर रही है? जी, लेयर टू। तो इसका मतलब कि आपकी कंपनी को सिर्फ लेयर टू की एक्सपर्टीज पता होनी चाहिए, आपकी कंपनी को किसी सूरत भी लेयर थ्री और ऊपर की लेयर की एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वेल डिफाइंड है। पता है कि भाई वो जो करेंगे अपने मुताबिक सब कुछ करके देंगे, मुझे उसके बारे में सोचने की जरूरत है नहीं। अब भी नहीं क्लियर? और ये बात अगर किसी को मैं पूछूंगी किस लेयर पे हो और उसको नहीं पता, तो ये मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ये तो बिल्कुल इसी तरह है ना कि मैं किसी से कहूँगा जरा कलमा सुना दो और वो मुझे देखे जी कि पता नहीं क्या चीज मैं बोल रहा हूँ। इन लेयर्स के साथ आपकी दुश्मनी नहीं, दोस्ती बड़ी मजबूत मुझे नजर आनी चाहिए। क्यों साकिब, गलत तो नहीं कहा? हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अंबर के बिहाफ पे है, साकिब ने कह दिया कि अब इंशाल्लाह अंबर बताएगी कि किस लेयर पे है। तो यही वो कह रहा है कि टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट ऑपरेट्स, ये तारिक ने इतना पीछे हो गई मुंह देखा है कि उसको साकिब पे एतबार नहीं है। तो वो कहता है कि जी टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट ऑपरेट्स एट दी एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड इंटरनेट लेयर। इसका मतलब दिस समथिंग, इसका मतलब ये हुआ, अगर ये बात आपको मेरी समझ आ रही है, इसका मतलब कि पूरा टीसीपी आईपी सूट जो है दैट इज पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। वो कह रहा है दीज आर ऑपरेट्स एट दी एप्लीकेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर और इंटरनेट लेयर, तो दीज ऑल दी थ्री लेयर इन दी ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका मतलब योर टीसीपी आईपी सूट is embedded in your operating system. That's the reason you call your operating system as a network operating system, NOS. All the operating system which you have today, whether it is Linux, Unix, Solaris, Windows, Linux, Ubuntu, whatever you call them, all are today network operating system, mean the TCP protocol suite is implemented, embedded there. तो कहते हैं the most common network access layer LAN protocols are Ethernet and WLAN। हम ये नहीं कहते कि सिर्फ यही दो इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ द लोकल एरिया नेटवर्क्स एंड वाइड एरिया नेटवर्क, especially the local area network, the important is either you are using the Ethernet or you are using the WLAN. I'm wrong.
उमर कहता है कि आप इधर मत कहो, उमर कहता है आपको वी आर यूजिंग बोथ। अब उमर का ये लफ्ज बड़ा स्ट्रिक्ट था इसलिए मैंने यूज कर लिया, ठीक है ना उमर? तो फिर शफीक बताएगा ये कहाँ पे कभी हम यहाँ के इस्तेमाल करते हैं ये दोनों? क्योंकि उमर ने तो बड़ी, मैंने कहा इधर इधर मतलब क्या, या ये या वो, उसने कहा या मत करो, बोथ को, दोनों। कहता है शफीक से पूछ ले, शफीक को पता है, वरना आप भी तारक की तरह पीछे मुड़ के कह सकते हैं मैंने कब कहा है। जी तारक, अब वो पीछे से देख रहा है। ये दोनों कहीं हम यूज कर रहे हैं। शाबाश, शाबाश। जब रिकॉर्डिंग दे रहा हूं तो लिखते क्यों हो? वहां से बैठ के लिखो भी और सब कुछ करो, यहाँ सुनो और अपनी क्लैरिटीज की तरफ जाओ। जब मैं कह रहा हूं कि जी और स्लाइड दी हुई है, स्लाइड ही दिख रहे हो ना? हाँ बिल्कुल ठीक कहा है। इथरनेट मैंने कहा, डब्ल्यू लैन हम कहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके आसपास के इस्तेमाल हो रहे हैं, मैंने कहा क्योंकि मैंने कहा बोथ। राउटर में कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं? तो ये जवाब है कि मिसाल के तौर पे इवन अगर हम, हमें लगता है कि हम वायरलेस हैं, जैसे अभी मैं आया हूं यहाँ बैठा हूं और मैंने अपना लैपटॉप लगा के शुरू हो गया, तो आम लेमैन को तो ये नजर आता है कि भाई एवरीथिंग इज वायरलेस। लेकिन मैं जब स्टूडेंट को अगर मुझे जब ये कहते हैं तो मैं उनको लेकर जाता हूँ कि जी आओ एक्सेस रूटर के पास जाते हैं, और देखो इसके पीछे ये इथरनेट केबल लगी हुई है, और ये इसको इथरनेट स्विच के साथ जोड़ रही है, और फिर एक इथरनेट स्विच दूसरे इथरनेट स्विच के साथ जोड़ रहा है। इसके मतलब बैक एंड पे आपका इथरनेट है और फ्रंट एंड पे आपका डब्ल्यू लैन है। इसलिए ही तो शफीक कह रहा था कि दोनों का होना बड़ा जरूरी है, समझना बड़ा जरूरी है। आप समझ आ गई? ओके। यही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है कि, और मैं इसको थोड़ा बड़ा कर, और ये तो मैंने क्लियरली बता दिया हुआ है कि जेंटलमैन, आपका जो, जी, आपका जो सूट है कंप्लीट हर लेयर पे, और स्पेशली टीसीपी/आईपी सूट, ये ओपन है। ओपन का मतलब ये है कि जैसे अभी हमने कहा कि जी अंबर ने सोच लिया है कि उसने एनआईसी कार्ड्स बनाने हैं, तो अब उसको अगर लाजमी तौर पे कोई हेल्प चाहिए, स्टैंडर्ड चाहिए जिसको वो इम्प्लीमेंट करे। क्यों करे? क्योंकि उसके कार्ड बाकी दुनिया के कार्ड के साथ इंटरऑपरेटेबल हों। जैसे मिसाल के तौर पे प्रॉब्ली आप लोगों ने लैब में किया कि आपने एक तरफ अपना लैपटॉप लगाया और दूसरी साइड पे आपने अपने दोस्त का लैपटॉप लगाया, और दरमियान में सॉरी कोई केबल लगी थी, मुझे याद नहीं, इन तारे के पीछे जो बैठे हुए हैं, क्या नाम है आपका? मुतार। मुतार को याद है वो कौन सी केबल इस्तेमाल हुई थी? क्रॉस केबल। तो अब अगर क्रॉस केबल लगी हुई थी तो दोनों एंड के एनआईसी थे, इसका मतलब दोनों एनआईसी नीड टू कम्युनिकेट विद वन अनदर। तो अगर ये दोनों इंटर ऑपरेटेबल ना होते तो फिर तो मुतार कहता कि जी मेरा वाला कार्ड जो है इंटेल का है, तुम भी इंटेल का लगाओ, फिर बात होगी। लेकिन अब आपको इसके इस तरह का कहने की कोई जरूरत नहीं है। एक तरफ कार्ड इंटेल का है, दूसरी तरफ डेल का है। एक तरफ इंटेल का आज है, कल जो है दूसरी तरफ पे अंबर वाले कार्ड होंगे। तो अंबर को वो कार्ड ऐसे बनाने होंगे जो कि इंटरऑपरेटेबल हों बाकी दुनिया के तमाम कंपनीज के कार्ड के साथ, अदरवाइज का कार्ड कोई भी नहीं खरीदेगा। फिर घर पे रख के बैठे रहोगी कि मेरे कार्ड कोई नहीं खरीदता, ये नो कि कागज से कार्ड बनाना शुरू कर दो। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, कहने का मकसद ये है कि हाउ दिस ऑपरेबिलिटी इज कमिंग, बिकॉज ऑफ दी, बिकॉज ऑफ दी अहमद ओपन स्टैंडर्ड्स। अहमद नहीं बताता किसी को, नॉलेज को छुपा के रखता है, ठीक है? बिकॉज इट इज ओपन एंड इट इज स्टैंडर्ड। तो इसलिए इफ यू आर फॉलोइंग दे, ओपन का मतलब कि यू डोंट नीड एनी लाइसेंस फ्रॉम समवन, इट इज ओपनली अवेलेबल ऑन ऑन द इंटरनेट। जस्ट अंबर ने पढ़ा वो स्टैंडर्ड और उसके मुताबिक अपना हार्डवेयर बना के मार्केट में बेच दिया।
क्लियर? अब मैं बताना ये चाह रहा हूं कि अगर इवन अगर मैं 4 लेयर, मैं हमेशा 5 लेयर की बात करता हूं और कई बुक्स भी 5 लेयर पे लिखती हैं, तो इसलिए मैं गलत नहीं हूं। लेकिन अगर मैं यूं ही कह दूं कि दिस इज लेयर नंबर 1, दिस इज लेयर नंबर 2, दिस इज लेयर नंबर 3 एंड दिस इज लेयर नंबर 4, तो लेडीज एंड जेंटलमैन यू कैन सी दैट हर लेयर पे एक प्रोटोकॉल नहीं है, देयर आर मल्टीपल प्रोटोकॉल। इसका ये मतलब भी नहीं है कि सारे के सारे प्रोटोकॉल इस्तेमाल करना मस्ट है, नहीं, जो आपको जरूरत है वो इस्तेमाल कर लो। जैसे मिसाल के तौर पे ये चेयर्स है, तो लेट कर चेयर्स यहाँ पे मोर देन 50 है, तो क्या टीचर की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है कि जब तक के 50 की 50 चेयर नहीं भरेंगे तो क्लास नहीं लूंगा? नहीं, एक बंदा भी आके बैठ जाए तो क्लास शुरू हो जाएगी। तो इसी तरह यहां पर भी, इफ इफ आई शो यू, लेकिन इससे पहले ये देख लें, मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि आपके जो टीसीपी आईपी सूट है, that is implemented in your operating system, all the 3 layers, whether they are the application layer protocols, whether they are the transport layer protocols, or they are the internet layer protocols, all are embedded in your operating system. अब यहां पे मैं बताना ये चाहता हूं कि अगर ये एप्लीकेशन लेयर है, तो इसका मतलब है इसके ऊपर यहाँ पे कोई एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं। Am I right? अब मेहरान कहता है कौन सी एप्लीकेशन? मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कह दूं कि मेहरान साकिब के साथ जो बैठे हैं उनका नाम अगर पता चल जाए तो उनको भी हम लूप पे ले लें। आफान। तो आफान कहता है कि जी मैंने अपने कंप्यूटर पे, कल इसने बताया ये इंपॉर्टेंट बात, कि इसने कोई वेब क्लाइंट इंस्टॉल कर लिया है। जी, मैसेज किया था ना आपने? अच्छा, एक चीज और, आप लोग आपका एक ग्रुप बना हुआ है डीसीएन बैच 24 के नाम से, तो उसको थोड़ा पॉजिटिवली यूज करें। उसका नुकसान ये है कि मैं मतलब अगर इस तरह उसमें मैसेजेस आए तो शायद मैं उसको, जो अगर कोई काम का मैसेज भी करेगा तो मैं समझूंगा ये आपस में गपशप लगा रहे हैं, लेट देम, तो फिर आपको आपका जवाब नहीं मिलेगा और आप कहेंगे देखें हम सवाल करते हैं तो हमें हमें कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता। लेकिन अब वो उस पर रिस्पॉन्स देने का टाइम नहीं है, क्योंकि इतने मैसेजेस और बेतुके मैसेजेस जिनके बारे में कोई मतलब आपकी एकेडमिया के साथ उसका कोई तल्लक नहीं होता, तो नुकसान आपको ही होगा। कि इन शॉर्ट मैं उस ग्रुप को सिर्फ इसलिए यूज करूंगा कि मैं अपनी तरफ से कोई मैसेज देना होगा तो उस पर दे दूंगा, आपके मैसेजेस नहीं पढ़ूंगा, तो वो भी आप लोगों को फिर तकलीफ होगी, तो इसलिए थोड़ा सा केयरफुल हो जाएं। जी, और मैं रिस्ट्रिक्ट इसलिए नहीं करना चाहता, मैं कर सकता हूं कि मैं मैसेज रिस्ट्रिक्ट कर दूं कि भाई कोई मैसेज डाल ही नहीं सकेगा, लेकिन उसका डिसएडवांटेज, हर चीज का कोई पॉजिटिव भी होता है तो नेगेटिव भी होता है, लेकिन मेरे ख्याल से उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा और वो बहुत ज्यादा होगा कि आपका कोई सवाल होगा और वो आप मुझसे कभी भी उस ग्रुप पे नहीं पूछ सकेंगे, तो वो भी मैं नहीं चाहता। मैं तो इसलिए उस ग्रुप को रखा है कि आपको जब भी कोई तकलीफ हो, कोई मसला हो, तो आप उस पर आए और अपनी मसले को रिजॉल्व करवाएं, ताकि द इशू शुड बी रिजॉल्व एट योर डोर स्टेप। आपको आके मेरे ऑफिस के बाहर आके खड़ा ना होना पड़े, क्योंकि आई डोंट नो इट इज गुड और बैड, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा ऑफिस ज्यादा मैं वहां पे नहीं होता। ये नहीं कि मैं यूनिवर्सिटी नहीं आता, मतलब अगर आप इसका ये मैसेज लेना कि भाई बाज लोग होते हैं जो क्लास हुई तो आए, ना आई तो बस आने की मुझे क्या जरूरत है, लेकिन दिस इज नॉट द केस विद मी, नेवर इट हैज हैपेंड इन माय होल कैरियर। आई ऑलवेज वेदर आई हैव ए क्लास और नॉट, बट आई टेक इट लाइक ए ड्यूटी कि नहीं जी ये टाइम तो मेरा यहाँ होना ही होना है। लेकिन मेरी क्लासेस का ड्यूरेशन क्योंकि ज्यादा है, तकरीबन मुझे ऑन दी एवरेज 6 से 7 घंटे क्लास में रहना पड़ता है। तो एक बंदा 6 से 7 घंटे क्लास में हो तो फिर वो ऑफिस में कितना बैठेगा, उसका वो टाइम कम हो जाता है। तो होता तो इंडस्ट्री में ही हूँ, जैसे अभी आपके पास हूँ, जो ही आपसे निकलूंगा तो वो आपकी कॉन्फ्रेंस है उसकी एक सेशन को चेयर करूंगा, फिर उससे निकलूंगा तो 2 बजे नेफटेक की क्लास होगी, 6 बजे उससे निकलूंगा तो फिर मैं और क्लास में अपने ऑफिस में किस वक्त बैठूं। तो इसलिए अगर आप मुझे फैसिलिटेट करें कि, और फैसिलिटेशन आपके हक में है, जितना सीख सकते हो। अभी आपको ये मेरी बातें शायद बुरी लगती होंगी, लेकिन
जब आप यहां से इंपॉर्टेंट, मुझे इससे इससे फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि मुझे उस वक्त फर्क पड़ता है कि आप लोग यहां से ग्रेजुएट होकर निकल जाएं और फिर मुझे बाहर खड़े होकर गालियां दें कि इसने हमारे साथ ज्यादती की, इसने हमें कुछ नहीं बताया, इसने कुछ नहीं सिखाया, कोई चीज इसने ऐसी नहीं बताई जो कि हमें मार्केट में काम आ रही है। तो मुझे खुशी उस वक्त होती है जब मुझे मेरे स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं कि हमें ये चीज ने बड़ा फायदा दिया और हमें फर्दर भी हेल्प आउट करो। और जो उन्होंने मेरे साथ काम किया होता है वो कोशिश करते हैं कि रिकमेंडेशन लेटर उस चीज पे लें और हमेशा उस पे कामयाब होते हैं। तो जो चीजें उन्होंने की होती है मैं उनको इस मेथड से, इस तरीके से लिख देता हूं कि उनको, चाहे वो जॉब के लिए जाएं और चाहे वो पढ़ाई के लिए जाएं, उनको, चाहे वो इंडस्ट्री है चाहे वो एकेडेमिया है, उनको फील हो कि इस बंदे ने अच्छा काम किया हुआ है। ठीक है। एनी हो, तो जनाब मैं कह ही रहा था कि हाँ वो अफगान वाला हमने बात तो सुनी नहीं। कौन सा आपने जी वेब क्लाइंट इंस्टॉल किया है? आपने मैसेज किया था ना कि आपने ये इंस्टॉल किया है। ओ, मैसेज करके भूल गया। लेकिन इसको पता है, मोहसिन को पता है। मैं चाहता जी, मैं ये चाहता ये था कि एटलीस्ट डू यू नो व्हाट इज अ वेब क्लाइंट। मेरा मकसद ये नहीं था, इस गपशप में लाने का मकसद ये था कि आपसे एक चीज निकालूं, एंड दैट इज कि जी व्हाट इज अ वेब क्लाइंट, हैव यू एवर यूज्ड इट? दिमाग में नहीं है, जबकि इतना यूज ये करता है कि इसके दिमाग में उसके अलावा कुछ नहीं है। दैट बाय श्योर आई कैन से कि 50% ऑफ योर न्यूरॉन्स यूज बाय दिस वेब क्लाइंट। ऐसा ही मुताहर कौन सा है? शर्म आनी चाहिए। उमर, क्रोम। कौन है आप में से जो जिसने गूगल क्रोम नहीं इस्तेमाल किया हुआ? गूगल कहते हो तो इट इज सर्च इंजन, इट इज नॉट ए वेब क्लाइंट, इसलिए मैंने आपको रोका। तो एवरीवन इज यूजिंग दी क्रोम, आर फायरफॉक्स, आर डक डक गो, आर फायरफॉक्स, एज, इंटरनेट एक्सप्लोरर। Yahoo is again a search engine. Yahoo is not a web client. This is the web client, gentlemen. Simply, this is the web client, which I am showing here. This is the web client. This is the web client. For example, I click it here and this comes here. This is the web client. This Chrome, Google Chrome. Oh, गूगल जैसे देखा ना, पहले तो वेरी इंटरेस्टिंगली एक तरफ गूगल है, एक गूगल एक कंपनी है। अब गूगल के दो बहुत से फ्लेवर्स हैं, आपने दो का सवाल किया, तो अगर दो का सवाल आपने किया, जी, आपने अगर ये क्वेश्चन किया, अच्छा क्वेश्चन है कि गूगल एक कंपनी है, हमने मान लिया गूगल के बहुत सी चीजें हैं, लेकिन आपने दो के बारे में पूछा। एक आपने कहा कि हम जस्ट लिखते हैं गूगल, गूगल कर लो, टीचर भी कहते हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं क्रोम ओपन कर लो। इसका मतलब दो अलग चीजें हैं। गूगल इज अ सर्च इंजन, गूगल इज अ सर्च इंजन, while क्रोम इज ए वेब क्लाइंट। यानी कि अब आप कहेंगे जी और भी एक्सप्लेन कर दो, तो मैं ये कहूंगा कि सर्च इंजन का मतलब है कि अगर मुझे मिसाल के तौर पे यहां पे लिखना है कोई भी चीज, मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूं कोई RFC, या चले मैं लिखता हूं यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पिशावर, मैं यहां लिखता हूं यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पिशावर, लिख दिया। अब ये मुझे उसके बारे में कहीं से भी ढूंढ के ला के देगा, कहीं से भी ढूंढ के ला के उसके पेजेस दे देगा, और यही आपने देखा कि मुझे दे दिए। हु डिड इट? द सर्च इंजन। तो चाहे आप गूगल को देखो, चाहे आप याहू को देखो, चाहे आप बिंग को देखो, दे आर द सर्च इंजन।
अब इन सर्च इंजन पे जाने के लिए मोस्टली वी नीड ए वे टू कनेक्ट टू ए वेब सर्वर। मिसाल के तौर पे ये आपके इस वक्त आपको क्या नजर आ रहा है? आपको एक वेब सर्वर का एक पेज नजर आ रहा है। यूटी ने ये पेज अपने एक वेब सर्वर पे डाला है, तो मुझे उस सर्वर से बात करने के लिए एक वेब क्लाइंट चाहिए, एंड दैट वेब क्लाइंट इज a Chrome. This web client is a Firefox. This is a DuckDuckGo, whatever you want. You want to use Edge, Internet Explorer, blah blah. अब भी नहीं क्लियर? ये शुड बी वेरी क्लियर जी। आप लोग सीनियर, अब आपको ये भी नहीं कह सकता कि आप सीनियर मोस्ट नहीं हो, क्योंकि आप 7th 8th सेमेस्टर वाले तो कहते हैं दे आर आवर लिविंग बैच, वो तो जाने वाले हैं। आप तो सीनियर आप हैं, तो आपको ये चीजें कम से कम मस्ट पता होनी चाहिए। अच्छा जी, वापस आ जाइए। तो जनाब, अब आपने, हम अपने टॉपिक पे वापस आ रहे हैं कि आपने जैसे अभी आपने एग्जांपल ली कि आपने क्रोम, ऊपर अफनान कहता है मैंने मैसेज करके भूल गया, तो नहीं आप भूले नहीं थे, आपको याद था, है ना? आप हर रोज यूज करते हो ना? मेरे ख्याल है कि इतना आप डेली, इतना टाइम आप अपने स्टडीज को नहीं देते हो, इतना अपने खाने पीने को नहीं देते हो जितना कि क्रोम को देते हो। ठीक है ना जी? तो यहाँ पे हम, ये क्रोम आ गया। अब अगर क्रोम एप्लीकेशन है तो वो यहां से किस एप्लीकेशन को यूज करेगी? वो दो चीजों को यूज करेगी एज फार एज आई अंडरस्टैंड। पहली चीज तो वो इस चीज को इस्तेमाल करेगी कि जो तुम यहाँ पे यूआरएल लिखोगे वो इसके हवाले करेगी। किसके? डीएनएस सर, विच इज अगेन ए प्रोटोकॉल, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, और इससे उसको आईपी में कन्वर्ट करवा लेगी। तारिक कंफ्यूज है, नहीं मान रहा मेरी बात, थोड़ा थोड़ा दिखा ना तारिक? अगर मैं यहां पे लिखूं, अगर मैं यहां पे लिखूं CMD, और यहां पे मैं, अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा तो मैं इसको रब कर देता हूं जी, और यहां पे मैं लिख दूं डब्ल्यू पिंग, फॉर एग्जाम्पल पिंग www. एनी वर्ड, फेसबुक चलें, facebook.com, तो क्या होगा? सबसे पहला काम ये हुआ, जो मैंने अभी बताया, कि इसने जाके सबसे पहले मेरे डीएनएस से मांगा कि जनाब ये क्या है? ये मुझे इंग्लिश देते हैं, मुझे इंग्लिश में कोई समझ नहीं आती, कंप्यूटर कहता है, और ठीक कहता है, उसको इंग्लिश उर्दू पश्तो कुछ नहीं आता। दैट द रीजन वो डीएनएस के पास गया कि मुझे ये दो। जो ही उसको ये मिला, फिर उसने ही अकॉर्डिंगली एक्ट किया। तो पहला काम, मेरा ये कहना गलत नहीं होगा, मेरा ये कहना गलत नहीं है कि वो डीएनएस के पास गया और उससे वहां से उसने आईपी लिया। आईपी लेने के बाद आईपी लेने के बाद, क्योंकि ये वेब एप्लीकेशन है, इसने ये इसकी तरफ आ गया जहां पे HTTP भी है, HTTPS भी है, रेस्ट भी है। आप ये दो तो इस्तेमाल करते हैं हर रोज। अगेन HTTP और HTTPS, आप लोग बगैर सोचे समझे, जैसे आफान जो है वो गूगल क्रोम बगैर सोचे समझे इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन उसको सिर्फ पता नहीं था कि एक वेब क्लाइंट है। तो इसी तरह आप ये दो प्रोटोकॉल, इनमें से कोई एक इस्तेमाल, या ये इस्तेमाल कर रहे होते हो। और आप में से जो लोग कुछ डेफिनेटली मेरे साथ काम कर रही हैं और वो ऑटोमेशन में जाएंगे, तो उनके साथ मैं इस पे भी काम करना पसंद करूंगा। रेस्ट, रेस्ट का ये मतलब नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूं कि हफ्ते इतवार की छुट्टी है सो जाओ। रेस्ट हो रहा है, कल भी छुट्टी है, कल तुम मजदूर हो कि तुम्हारी छुट्टी है। ओके, आगे चलते हैं जी। तो कहने का मकसद ये है कि फॉर ऑटोमेशन आप इस इंटरफेस को या इस प्रोटोकॉल को अच्छा खासा इस्तेमाल करते हैं। अल्दो कई दिल में कहा अल्लाह दे बच की।
रेस्ट एक प्रोटोकॉल है, लेकिन इस्तेमाल उसी उसी पर्पस के लिए होता है। रेस्टफुल एपीआई का नाम रेस्टफुल एपीआई है, ठीक है। स्पेशली वी यूज इट इन दी समथिंग विच इज इन द मार्केट। मैं ही नहीं कहता कि इस्तेमाल नहीं हो रहा, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन आर ऑलरेडी यूजिंग इन, एंड दैट इज द नेम ऑफ एसडीएन। हैव यू हर्ड? तो ये क्रोम आप किस लिए यूज करते होते हो? वो कहते हैं हम बड़े ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। फायरफॉक्स यूज करते हो? और इंस्टाग्राम में ये चीजें नहीं आती हैं। लेकिन अफान की, जब कि अफान की बात से आप एग्री नहीं कर रहे थे कि जी आओ जी ढेर ज्यादा संभालो जी। अच्छा, वो आप मतलब वहां से वो कहता है कि पहले जाते हैं क्रोम पे, वहां से इंस्टा पे चले जाते हैं, फिर उसके बाद इंस्टा भी रहते हैं। एसडीएन इज सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग। सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग। मैंने इलेक्ट्रिकल के 3 स्टूडेंट को 2 साल पहले इस पे एक प्रोजेक्ट कराया था। अल्दो के अगेन मेरा मुझे कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट थे, और कागज पे उनका जो सुपरवाइजर था कागज पे, दैट वाज देयर चेयरमैन। लेकिन चेयरमैन, क्योंकि उनको लाजमी तौर पे डिपार्टमेंट में एक रिक्वायरमेंट थी, मैं ही नहीं कहता कि वो गलत है, एक रिक्वायरमेंट होती है कि जी आपका डिपार्टमेंट से सुपरवाइजर हो। तो लेकिन थ्रू आउट द ईयर दे वर वर्किंग विद मी, एंड उनमें से एक आज चाइना में मास्टर कर रहा है स्कॉलरशिप पे, और 2 जो हैं वो कहीं टेलीकॉम सेक्टर में जॉब कर रहे हैं। ऐसा काम करने का ये एडवांटेज होता है कि जैसे आप लोगों में से किसी को भी एसडीएन का नहीं पता था, तो जब वो चाइनीज के सामने बैठा इंटरव्यू में, उसने कहा कि जी आई वर्कड ऑन एसडीएन इन माय बीएस लेवल प्रोजेक्ट एफआईपी, तो शी वाज इम्प्रेस्ड, सिंपल। जी यू वर्क समथिंग विच इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, एंड दैट इज अप्रिशिएबल कि यू हैव डन दिस सच टास्क इन योर अंडरग्रेड। तो फिर वो उसको मास्टर का फुली पेड स्कॉलरशिप क्यों नहीं देंगे? तो दैट इज द रोड मैप, अगर आप लोगों ने आगे बढ़ना है कि नई चीजों में आपने हाथ मारना है, ठीक है जी। तो यहां पे वापस आ जाएं जी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मल्टीपल प्रोटोकॉल्स हैं। अब इन प्रोटोकॉल्स के आप इनमें से कोई यूज करें। एक और एप्लीकेशन भी यहां लिख लेते हैं, क्योंकि मैंने कहा एप्लीकेशंस। तो अगर मुझे कोई फाइल अपलोड करनी है, या कोई फाइल, और ये भी अब देखा जाए तो साकिब कह रहा है कि जी दा करो रोजाना करो, पासून और दाकार को और उदकी को दाम दाकार को लगे है अपलोडिंग फाइल्स एंड डाउनलोडिंग फाइल्स फ्रॉम द इंटरनेट। लेकिन अगर मैं ये पूछ लूं कि साकिब कौन सा आप एप्लीकेशन यूज करते हो इसके लिए, कौन सी एप्लीकेशन आपने अपने कंप्यूटर पे रखी हुई है इस पर्पस के लिए, तो कोई जवाब होगा जी? गूगल क्लासरूम। मेरे शागिर्द आज को मुझे लगता है कि कहते हैं सुबह सुबह इसको इतने लतीफे सुनाए ताकि सारा दिन खुश रहे। तो जनाब आप एक एक फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो। गूगल क्लासरूम इज नॉट ए, इट इज ओनली ए स्पेस जहां पे आप कुछ चीज रखते हो या उठाते हो। गूगल क्लासरूम इज लाइक योर हार्ड डिस्क, जैसे आप अपनी हार्ड डिस्क में कुछ रखते हो या उठा लेते हो, बस सिंपल। वो आपको ऑनलाइन है और ये आपके साथ फिजिकली है, दैट इज द ओनली डिफरेंस। किसी को इंटरव्यू में ऐसी बातें ना करना, क्योंकि फिर वो भी सारा दिन 24 घंटे एंजॉय करेगा कि जी दा यूटी ना माता दा नवे नवे लतीफे मिला हुई थी जी। फिर वो फिर मसला है ना कि वो उससे टिकटॉक बनाएगा कि यूटी वाले आए थे और ये पसंद आगे गए हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम बता ही रहा था, जैसे मिसाल के तौर पे ये काम मैं चाहूंगा कि बड़ी जल्दी तुम करो, एंड दैट इज के राउटर से या स्विच से उसका ओएस, जिसको आईओएस कहते हैं, वो अपनी अपनी लैपटॉप अपनी इस पे ले आओ।
अपने लैपटॉप पे ले आओ। तो व्हाट यू आर डूइंग, डाउनलोडिंग। इसी तरह फिर मैं चाहूंगा कि उसको वापस उस पर रिस्टोर कर दो, तो वहां पे डालोगे ना। तो इसका मतलब व्हाट एप्लीकेशन यू आर यूजिंग, एफटीपी और टीएफटीपी या एसएफटीपी। आपको याद हो, अगर पता नहीं आप उस क्लास में ही हैं, जो हमारे इंडस्ट्री से स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम यूएई, उसने इस बार यही क्वेश्चन किया कि जी एक एक मशीन से जब हम बैकअप्स लेते हैं आईओएस के और कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स के, तो इट टेक्स टाइम। आज के दुनिया में दे आर मूव फ्रॉम दी सीएलआई टू गुई। तो क्या हम कोई ऐसा कर सकते हैं कि हम अपने एंड पे कोई एप्लीकेशन ना इंस्टॉल करें? उसका क्वेश्चन ये था। तो here is the kg, you should people should what you are doing there, you are uploading and downloading. Again, you need an application for this purpose, and you will be choosing something from here, either FTP or SFTP or TFTP. मेरी कुछ बात समझ आ रही है? कहाँ है रुकमा? समझ आ रही है? अगर आ रही है तो देन दिस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल हैज टू डिसाइड कि इन दोनों में से कौन सा। मिसाल के तौर पे इफ यू आर यूजिंग ए वेब, तो बाय नो डाउट इट विल बी यूजिंग दी TCP, it will be using the TCP. And if you are using the DNS, no doubt you will be using the UDP. Then when you are in a TCP or UDP using, Umar, you will be choosing among these two, either IPv4 or IPv6. Either IPv4 or IPv6. And then you will be looking at your data link layer. कौन सी technology you are using? Wi-Fi? So you will be using this, then this part, this hardware. You are using wire, you will be using this Ethernet. You may be using Bluetooth. Please, you may be using the Bluetooth. So here I write Bluetooth. So you will be choosing Bluetooth then 3. You may be using the sensors, and you will be using the Zigbee. You will be using the Zigbee. You may be using the WiMAX. You may be using the, so here will be a WiMAX for you. So which means, ladies and gentlemen, this will be choosing one of the hardware which you are using there. And then this technology is connected to the media, to the transmission system. तो यहां पे अब आपको मेरी वो बात समझ में आ जानी चाहिए कि जैसे मैंने कहा था कि जब आप अपना NIC बनाते हो, फिर पासपोर्ट लेते हो, फिर वीजा लेते हो, देखो यहाँ पे भी वही हो रहा है कि पहले ये करते हो, तो फिर ये करते हो, फिर ये करते हो, फिर ये करते हो, और आपका डेटा नेटवर्क पे चला जाता है। तो हमने गपशप में वही चीजें जो कि काफी सीरियस वर्क है, सीरियस रिसर्च है, सीरियस स्टडी है, हमने उसको गपशप में सीखने की कोशिश की। इज इट क्लियर एवरीवन? तो यहां पे यही लिखा हुआ है कि इन ओपन स्टैंडर्ड, लेकिन मुझे ये पता नहीं है कि ओपन स्टैंडर्ड कहते कैसे हैं। तो यहाँ क्लास में अहमद के साथ ही बैठा हुआ है, वो कहते हैं कि मैं इन चीजों का मास्टर माइंड हूं, मैं बताता हूं। ये लिखा हुआ है जी, साथ साथ ही लिखा हुआ था उनके लिए कि जी फ्रीली अवेलेबल टू द पब्लिक, फ्रीली अवेलेबल टू द पब्लिक and can be used by any vendor. Simple definition. What's your name? हसन। जैसे हसन ने कहा, बिल्कुल इसी तरह लिखा हुआ है कि ओपन स्टैंडर्ड का ये मतलब होता है। तो कहता है कि स्टैंडर्ड बेस्ड प्रोटोकॉल सूट दैट इज इंडोर्स्ड बाय द नेटवर्किंग इंडस्ट्री and approved by the standardization organizations to ensure what? Very important thing, interoperability. क्योंकि मैं जब मैंने अभी कहा कि अगर अंबर कोई नई कार्ड्स, अपने एग्जांपल हमने ली कि वो अपने NIC कार्ड बनाने की टेक्नोलॉजी पे काम करना चाह रही है,
तो जरूर चाहेगी कि दुनिया के जितने भी बाकी वेंडर्स हैं उनके साथ इसका इक्विपमेंट ऑपरेटेबल हो। ये ना हो कि ये कहे कि जी दुनिया, पूरी दुनिया को कहे कि जी मेरा कार्ड लिया है तो अपनी पूरी चीजें चेंज करो क्योंकि तूने गलती से मेरा कार्ड खरीद लिया है। इज इट डिजायर? तो दुनिया को, उनको तो नहीं छोड़ेंगे। आपके कार्ड को आपके हाथ में देंगे, बच्चे घर ले जाओ अपने और अपने ड्राइंग रूम में रखो, हमें नहीं चाहिए। तो दे आर द टू बेस्ट थिंग्स। अगर आपसे कल को पूछ लेता है कि क्यों ओपन स्टैंडर्ड अच्छा है, एक तो फ्रीली अवेलेबल है और कोई भी वेंडर उसको इस्तेमाल कर सकता है, और उसकी फायदा क्या है कि इंटरऑपरेबिलिटी आती है, नंबर टू नोवेलिटी आती है, कंपटीशन आता है। क्यों शफीक? क्लियर एवरीवन? ओके, देन इज दी क्या मिल जाएगा? नहीं 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 नहीं, गुइक नहीं मिल जाएगा। क्वेश्चन ये किया गया, अभी मैंने कहा कि जी आप में से कुछ स्टूडेंट जो कि नेटवर्किंग साइट, इसे ये मैंने लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया कि आपने देखा इंडस्ट्री वाले कहते हैं हम ये कर रहे हैं, तो अगर आपको नहीं आता तो फिर लोग आपको क्या कहेंगे? नालायक। तो हम नहीं चाहते कि दुनिया आपको नालायक कहे। तो जो चीजें इंडस्ट्री में वो प्रैक्टिस करते हैं, हमारा फर्ज बनता है एकेडेमिया में कि हम आपको उसमें ट्रेन करें। क्योंकि अगर हम ट्रेन नहीं कर रहे तो इसका मतलब कि आप उनके लिए काबिले काबिले भरोसा नहीं होंगे। फिर वो लाजमी तौर पे आपको कहेंगे हम आपको ट्रेनिंग लेते हैं, और ट्रेनिंग लेके आपको 20,000 रुपए देंगे। हम कहते हैं नहीं, आप डे वन पे उनके कहेंगे जी एक्सपेक्टेड एट मिनिमम 70, तो वो उसी वक्त होगा कि आप उसे कहेंगे जी आई विल वर्किंग एज ए नेटवर्क इंजीनियर, नॉट एज ए ट्रेनिंग। ठीक है ना? ट्रेनिंग को तो कई दफा वो ये भी कहते हैं कि जी मेहमान आ गया जरा इसको चाय पिला दो, हम ये भी नहीं चाहते। कई जगह पे देखा है कि इंटर्नी को सिर्फ ये कहा जाता है कि कस्टमर आया हुआ है, जाके उसको नीचे से वेलकम करके ऊपर ले आओ, और अब ये जा रहा है इसको गाड़ी तक ले जाओ। वी डोंट वांट दिस, वी वांट यू टू बी ए नेटवर्क इंजीनियर। जैसे दी गुड पॉइंट अगेन, कि आप इससे शायद आपको खुशी होगी कि अगर मैं आपको ये दिखाऊं, जी कैन यू रीड दिस? I think I can't zoom. Probably I can. I can. I can zoom it or not? How? कंट्रोल प्लस। हाँ जी, पढ़ लो। अगर यू आर कैपेबल, तो अमेरिका वाला भी कहेगा कि हमारे साथ क्लोज का लाइजन में रहो। और अगर आप बेकार हैं, तो फिर वो आपको मैसेज करके ये नहीं कहेगा कि जी मैं कल पहुंच रहा हूँ यूएस और फिर मुझे अपना ईमेल दो ताकि वी शुड बी इन टच। इसका मतलब है कि एटलीस्ट हम अगर उनसे आगे नहीं है तो कम से कम हम उनसे पीछे भी रहना पसंद नहीं करते। वी वांट टू बी इन द नॉलेज फील्ड, वी वांट टू बी एज अपडेट एज दे आर। तो वी वांट फ्रॉम यू एज वेल कि हमारा शागिर्द भी वहां जाए तो उसको वो ये ना कहें कि चौथन राग नहीं, वो जेबो वाले, जेबो कल वजे वापस। ठीक है अफान, आगे चलते हैं जी। तो हाँ, क्वेश्चन आपने ये किया था, नहीं मेरा मकसद ये है कि आप जिस तरह के आपका एक स्विच लगा हुआ है, तो मैं ये चाहता हूं कि मिसाल के तौर पर सिस्को में आपका स्विच लगा हुआ है और वो सालों से आपको फंक्शन बड़ी अच्छे तरीके से दे रहा है, तो मैं चाहता ये हूं कि मेरे स्टूडेंट उसका, उसके आईओएस का, क्योंकि सॉफ्टवेयर है किसी भी करप्ट हो सकता है, अगर वो करप्ट हो जाए तो कहां से लाएंगे?
नहीं ले सकते ना, क्योंकि वो तो लाइसेंस जो है वो तुम्हारी नहीं कह सकते कि गुलाजी के शॉप नंबर 25 से ले आएंगे। तो चाहिए कि आप उसका बैकअप ले लें और उसको किसी जगह पे सेव कर लें, नंबर वन। नंबर टू आप उसका आपने उस पर लाजमी तौर पे कोई ना कोई कॉन्फ़िगरेशन की होंगी। तो क्या 2 साल के बाद अगर खुदा ना खास्ता उसमें कोई मसला आ जाए तो आपको याद होंगी मैंने क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन की हुई है? हरगिज नहीं। तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल का भी बैकअप लेकर और अपने पास ये दोनों चीजें संभाल के रख लो। लेकिन रखने से पहले एक दफा उस पर अपलोड करके चेक कर लो कि ये काम भी करते हैं, या सिर्फ एक ऐसा पिस्तौल आपने रखा हुआ है जो कि गोली नहीं चलाता। तो दैट इज द रीजन, दैट इज समथिंग which you have to do probably every week in the industry. समझ आ गई अब? तो दैट आई वांट। ओके, तो यहां पे अगर आप तवज्जो दें तो यहां पे वो क्या बता रहा है कि किस तरह कम्युनिकेशन होती है जी। वो आपको बता रहा है कि पहले आपका वही चीज जो मैंने अभी समझाई उसी को मैं आगे लेकर चलता हूं कि जी आपका एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ने मैसेज जनरेट किया। अभी तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं ना, मैंने अब आपको 3 एप्लीकेशन की एग्जांपल दी है। एक मेहरान बता देगा कौन सी एप्लीकेशन की एग्जांपल दी है। आपने वेब क्लाइंट बने तो वेब क्लाइंट भी एक एप्लीकेशन, अभी आपने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ी। आपने डीएनएस क्लाइंट बन के यूआरएल भेजा और आईपी हासिल किया, तो ये दूसरी एप्लीकेशन आपने पढ़ी। तीसरा भी मैंने एक्सप्लेन की कि आपको किसी भी मशीन से कुछ चीज उस पर डालनी है या कुछ चीज उससे उठानी है। तो 3 चीजें मैंने 3 एप्लीकेशन अभी आपके सामने रखी। तो इसका मतलब हर एप्लीकेशन कोई ना कोई मैसेज कोई ना कोई इन्फो जनरेट करेगी। अब दिस डेटा विल बी गिवन टू योर एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। अब मैंने नहीं कहा कि सारे प्रोटोकॉल इस्तेमाल करोगे, मैंने लाइनें लगा के बताई कि अगर ये है तो ये यूज करेगा। ठीक है ना सर? सारे नहीं यूज करने। इसी तरह जब एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल होता है तो देन यू विल बी, इसकी एग्जांपल ये भी ले सकते हैं, कल आप बाहर चले गए हैं, वहां पे कोई डिनर है। अब आप वहां सारे खाने नहीं टेस्ट करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि वहां तक कौन, और वहां सारी ड्रिंक्स भी नहीं टेस्ट करोगे, क्योंकि वो तो उनमें से मे बी 80% जो है वो हलाल नहीं है। तो क्या आप कहेंगे दाम बखरमा ना? तो यू लीव देम, उनको साइड लाइन कर दोगे और कहोगे ये 20% जो है ये मेरे लिए है। इसी तरह वहां पे बहुत सी ड्रिंक्स पड़ी होंगी और उनमें से मेजॉरिटी ड्रिंक्स जो है अल्कोहलिक होंगी, आप कहेंगे नहीं जी मैंने इनको नहीं टच करना, दैट इज समथिंग फॉर मी, द रिमेनिंग इज फॉर मी। तो यहां भी आप एक एप्लीकेशन, आपने मैसेज जनरेट किया, उमर को पता होना चाहिए कि कौन सा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल इसको आगे प्रोसेस करेगा। एंड देन एप्लीकेशन देखेंगे, एप्लीकेशन लेयर ने ये डेटा दे दिया। अब ये डेटा नीचे ट्रांसपोर्ट लेयर को आ जाएगा, ये बताया ना। ट्रांसपोर्ट लेयर उसके साथ अपना अपना हेडर साकिब क्या कर देगा, लिंक कर देगा। तो साकिब कहता है लिंक कर देगा, हसन इस बात से एग्री करता है, ऐड कर देगा। ये बेहतर वर्ड है, लिंक नहीं करता। लिंक का मतलब होता है कि कोई जगह देगा जिसको टच करेंगे तो वहां जाएंगे, दिस नॉट ए लिंक। ऐड इज ए इवन बेटर वर्ड। लेकिन उमर कहता है नहीं, इससे भी बेटर वर्ड है, अपेंड कर देगा। क्योंकि ऐड से अगली चीज पिछली चीज तब्दील हो जाती है। मिसाल के तौर पे अगर अभी साकिब आपकी जेब में कुछ ऐड कर दे, कुछ पैसे ऐड कर दे, तो पहले वाले पैसे क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ डेटा को चेंज करने की इजाजत नहीं है, अपेंड कर देंगे। तो दिस अपेंडिंग ऑफ दी कंट्रोल इंफॉर्मेशन इन हेडर मुताहिर इज कॉल्ड encapsulation. Very nice. So here the header, TCP header has been encapsulated. Then it will go to the next layer, which is the network layer, which is the internet layer. It will add its own header. It will encapsulate the TCP or transport PDU. समझ आ रही?
then it will go to the hardware, which means data link layer, and hardware will add its own header as well as a trailer, and then this header, all this, असल तो सारी खेल हमने खेलनी है इस डेटा के लिए, लेकिन इस डेटा के लिए साथ साथ और चीजें भी ऐड करनी पड़ गई, एंड देन वी सेंड देम ऑन टू दी मीडियम। तो अगर हम आपको इस तरह बताएं तो इट लुक लाइक दिस, लेकिन यू नो आई कैन से दैट इन रियलिटी दिस इज समथिंग द बिट्स which are moving from the server to the client. लेकिन तारिक के साथ कौन है? नोमान। नोमान कहता नहीं सर मैं इंजीनियर हूं, ये 10 नहीं है। कहा ठीक है, नहीं है तो आप बता दें फिर ये क्या है। नोमान कहता सिग्नल्स हैं जी, इतनी आसान सी चीज है, आपको ये भी नहीं आती। तो नोमान ने क्या कहा? सिग्नल्स हैं, यानी कि वोल्टेज लेवल्स हैं या लाइट लेवल्स हैं, इंटेंसिटी लेवल्स हैं, समथिंग लाइक दिस। They are moving from the server to the client and from the client to the server. Is it clear? So this, when it reaches to the destination, हर लेयर अपना अपना हेडर रीड करेगी। मिसाल के तौर पे डेटा लिंक लेयर पे पहुंचा तो वो नंबर 1 पे ये हेडर और ये ट्रेलर रीड करेगी, प्रोसेस करेगी, जिस मकसद के लिए लगाया। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं नेटवर्क, अल्लाह ताला भी कोई चीज बगैर मकसद के नहीं बनाता। हाँ, बाज़ औक़ात हमारी कमअक्ली की वजह से हम समझते हैं इसकी क्या जरूरत थी। वो वजह ये नहीं है कि उसकी जरूरत नहीं है, उसकी वजह यह है कि हमें पता नहीं है। उसकी जात पे हमें कोई शक नहीं हो सकता, हर चीज मकसद भाई। इसी तरह साइंटिस्ट भी कोशिश करता है कि कोई चीज बेमकसद ना हो। तो ये जो है आप कह रहे हैं कि जी हेडर क्यों लगाए, मकसद है। उस मकसद को यहां पूरा किया गया। जब वो मकसद पूरा हो गया, अब इसकी जरूरत नहीं है, तो इसको रिमूव कर दिया जाएगा, इसको 1 को रिमूव कर दिया जाएगा, फिर ये 2 के हवाले कर दिया जाएगा। अब मिसाल के तौर पे अगर ये IPv4 है तो ये 20 बाइट्स हैं, अगर ये IPv6 है तो 40 बाइट्स हैं। इन 20 या 40 बाइट को रीड किया जाएगा, उनका मकसद है, उसका सेंटेक्स है, उसका सिमेंटिक है, उसका मीनिंग है, उसको उस मीनिंग के मुताबिक उससे फायदा लिया जाएगा, प्रोसेस किया जाएगा और फिर इसको रिमूव कर दिया जाएगा। फिर ये ट्रांसपोर्ट लेयर के हवाले किया जाएगा, यहां ट्रांसपोर्ट लेयर के हवाले किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट लेयर भी अपने 20 बाइट्स का इसका भी हेडर है, उसका मकसद है, बगैर वजह के नहीं लगाया। वो मकसद हम जब पढ़ लेंगे, अल्दो सॉरी सारी चीजों के मकसद यहाँ पे इस कोर्स में, क्योंकि टाइम बड़ा कम है, नहीं जा सकूंगा इस डिटेल्स में। लेकिन अगर आपका शौक इस एरिया में हो तो इन चीजों से मस्त गुजर जाओ, वरना इंडस्ट्री आपको आपके साथ कोई दोस्ती करने के मूड में नहीं है। तो देन कम्स दी, आखिर में क्या रह गया? योर डेटा। एंड डेटा विल बी, अगर यहां से किसी क्लाइंट ने भेजा है, जैसे यहां से किसी सर्वर ने भेजा है, तो क्लाइंट उसको रिसीव कर लेगा वो डेटा। और ये जो हट रहे हैं हेडर्स, हट रहे हैं, शफीक इस अमल को क्या कहते हैं? डी इनकैप्सुलेशन। बिल्कुल ठीक कहा, क्लियर हो गया। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगली क्लास में विल बी टॉकिंग अबाउट, टाइम तो है आई नो, अभी कम से कम मेरे पास 10 मिनट हैं, लेकिन मैंने आपको कहा कि 10 o'clock पे आई हैव टू मैनेज ए सेशन, तो उसके लिए मुझे थोड़ी सी चीज़ों को देखना होगा। तो आज मैं 10 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ और कोशिश करेंगे कि किसी अगली क्लास में इस टाइम को पूरा करें। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन? कि सब टीचर से आप क्वेश्चन ना करने की आपने को वादा किया हुआ है? तंग नहीं करते, सिर्फ वही तंग करते हैं 2 घंटे, फिर हर 2-3 महीने के बाद 2 घंटे तंग करते हैं।
जी। अच्छा, तो चल, अगर आप क्वेश्चन नहीं करते तो अंबर भी क्वेश्चन नहीं करती, फिर इसका नाम बदलना पड़ेगा। बताओ क्वेश्चन।